Your permission, Honorary Secretary and our National President, sir, will you forward for the opening of this session, first session, sir? Yeah, May I- please go ahead. Please go ahead. Thank you, sir. Yes, go ahead with the first. So with permission, I welcome our chairperson of the first session, that is session on the COVID in adult. The chairperson are Dr. R.N. Sharma, sir, who is president from IAP Agra branch, and Dr. Sanjeev Agrawal, sir, who is secretary of IAP Agra branch. I welcome both of you, sir, and I request you to introduce our speaker of the first session, Dr. Srivastava, sir. Thank you, Dr. Aradhana. Thank you very much. Dr. Ajay Srivastava needs no introduction. He is a very dynamic secretary of IAP UP 21-22 and executive board member CIAP 19-20, 19 and 19-20, joint secretary of developmental sector of IAP 2021 and past president IMA Bareilly, secretary IAP Raebareli, and executive board member UP IAP from 13 to 18, and he is a national tenor of many programs like Touch, NRP, Hope, COPP, Mission Kishore Uday, Smart Cleaning War Module, Fever 98.4 FM, and Dharma modules. So with this, he will deliver on adults COVID. Now I request sir for your deliberations. Please start, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Sharma sir. And first of all, I pay my sincere regards to Dr. Basavaraja sir, HSD CIAP, and he is one of those persons who have really transformed the way the IAP works. And I appreciate the presence of our EB members, Dr. Sanjay Ranjan sir and Dr. Rajiv Krishak sir, and Dr. Sethi sir, and along with all president and secretaries of the respected branches, and Dr. Anand Deshpande, who was my EB colleague in 2019. So this presidential action plan module, as you know, has 4 parts, and first part of which is COVID in adults. As we have seen in last 1 year or more, this all unprecedented and unexpected disease called COVID, though it infects both children and adults, but adults are definitely more severely affected than children till now. With a doubt in future of so-called third wave, that scenario may change. Yes, we are pediatricians, but adults too, and lot of patients of adult group ask for advice from you. Not only that, in the era of social distancing and telemedicine, you are supposed to be geared up with working knowledge. So here I am going to share my screen, and I would acknowledge the efforts of Dr. Dhiren Gupta, who for our scientific convener of this module, and who has prepared these slides. Yeah. Is my slides visible? Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. So, okay. Yes, perfect. So all the cases discussed here are real life scenario of his practice, Dr. Dhiren Gupta. So, and we are not going to discuss detailed ICU management, which is beyond the scope of our discussion. So what we are discussing, our aim is basic approach in adults, or say indications of home monitoring or hospitalization, and rational use of available drugs or therapeutic modalities, ki ivermectin, steroids, or low molecular weight heparin or plasma therapy. This module has been prepared in such a way that an average pediatrician, or say any average, this is something, there is something basic to the learning in COVID, which is our aim here. And
as you know, there are various spectrum of COVID disease and various treatment options. So we shall be focusing on these 4 groups mainly. तो जो समय पहले से बदल चुका, पहले जो लास्ट ईयर था सारा मामला था कि एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे थे. तो व्हाट द spectrum of COVID-19 had changed in past few months, that more and more younger generation is getting involved and some severity is there. This, in spite of all that, there is major subgroup of acute COVID जो कि 80% से ज्यादा में है, asymptomatic रहते हैं. That will come and pass off like a common URTI and nothing much to be done. So in that case, what should we do? What plan we can manage? That is our topic. And the other group is this year, what we have seen that there are a lot of cases of fulminant pneumonia. कोई बहुत यंग में like 40 years और 45 years and even 30 years, वो डिजीज जिस तरह से पहले थी उस तरह से नहीं है. ये बहुत तेज तरीके से बढ़ती है और देखते देखते 3 to 4 days जो एक श्रंकन पीरियड हो गया, पहले जो एक टाइमलाइन जिस तरह से थी उस टाइमलाइन को कम होते हुए अब ये बहुत तेजी से निमोनिया में चेंज होता है. तो उसमें टाइमली जज करना और जज करके उसको हमें क्या केयर देना है उसको समझने की कोशिश करनी है. डेफिनेटली देयर इज लार्ज ग्रुप हाई रिस्क जिसमें कि हाइपोक्सीमिया नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कुछ कर सकते हैं कि नहीं, एंटीबॉडीज एंटीवायरल्स इसका क्या स्टेटस है इसको देखना होगा, समझना होगा कि इस तरह के जो सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं इनको हम लोग डिसैचुरेट या हाइपोक्सीमिया ना होने दें, या अगर हो तो उसके पहले उसके हिसाब से क्या कुछ कर सकते हैं. एंड then definitely the other group is acute COVID pneumonia with classical presentation of LRTI. In this, we have to think of the signs we should recognize as early as possible, or what are the various treatment options like remdesivir or enoxaparin or steroids. We have to see in further slides. So केस के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं. दीज ऑल आर रियल केसेस विच हैव प्रेजेंटेड. बहुत कॉमन सारी चीजें हैं इसको समझने के लिए. तो ये पहला केस जो 77 ईयर मेल, डायबिटीज मेलाइटस, डे 6, बॉडी एक, फीवर, वीकनेस एंड HbA1c is 6. That means controlled diabetes. Okay, so सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, सारे फिगर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो टेलीमेडिसिन का जमाना है उसमें आपको जो भी हिस्ट्री मिल रही है आपको स्पेसिफिक हिस्ट्री पे रहना है, हिस्ट्री वाइज फोकस करना है और उसी के हिसाब से आपको अपना मैनेज करना है. तो इसमें 77 ईयर है, ये आपको एक हाई रिस्क चीजें मिल रही हैं. मेल, डायबिटिक, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें क्या करना है. डे 6 हो गया अगर फीवर का तो कैसे मैनेज करना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं. देन सेकंड केस इज 57 ईयर फीमेल, डायबिटीज मेलाइटस, बट हियर इट इज डे 9 ऑफ फीवर and HbA1c is 8.4, so you can say that diabetes is not controlled. एक और केस है, आप पूरी रेंज है इसमें, लगभग सब कुछ कवर होने जा रहा है हमारा. दिस इज 72 ईयर फीमेल, डायबिटीज मेलाइटस. दिस इज 5th डे विद बॉडी बट माइंड इट नो फीवर एंड HbA1c status is not available. Okay, let us take few more cases. So this is 43-year-old. Now ये वो सबसेट है पेशेंट्स का जो कि अब काफी मिल रहा है, और इसके जो पहले के जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे उनको कहीं ना कहीं से ब्रेक करके नई चीजें आ रही हैं. तो ये 43-year-old है. नाउ fever for 7 days
and every 6 hour it is 101. ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि किसको किस तरह से समझना है. नेक्स्ट, 91 ईयर ओल्ड, अगेन ये बहुत हाई रिस्क केस है. हम लोग समझ रहे हैं कि 91 ईयर ओल्ड, 6 दिन का बुखार, एंड desaturation has started, that is 92% is already there. So what plan we should do here, it is also important to know. Then this is real something like bad news for any practitioner when 35-year-old with 3 days of fever, high grade continuous, and he is hypoxic on day 3. So this is that subset which requires your urgent attention. So what are the guiding principle? हम लोगों को इन 6 केस में रिस्क देखना है कि हमें किसको ट्रीट करना है, कहाँ ट्रीट करना है, और हाई रिस्क केसेस को कैसे पिक करके उसके हिसाब से करना है. क्योंकि सब लोगों ने ये देखा कि पिछले दिनों में बेड्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसमें कई ऐसे जेन्युइन केस जिनको कि आईसीयू की भी जरूरत थी, उनको बेड नहीं मिले और उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ. और वहीं ऐसे भी मरीजों से अस्पताल भरा हुआ था जिनको कि शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बेड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ था फॉर सम रीजन और अदर. सो वी शुड एक रीजनेबल तरीके से ये हमें समझना चाहिए कि किसको कहाँ पे और कैसा इलाज करने की कोशिश करनी है. तो ये स्लाइड बड़े इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इसके बाद वाली स्लाइड, ये आने वाली 2 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे. यहाँ पे बात आ रही है रिस्क की, है ना, लो रिस्क, हाई रिस्क, एसिम्प्टोमेटिक. तो एक कंफ्यूजन सा मचा हुआ है कि आपको जो है बिल्कुल क्लियर कट आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस मरीज के ऊपर कितना ध्यान देना है. बीइंग डॉक्टर, देयर आर अदर लॉट ऑफ प्रेशर्स एज वेल कि जिसके ऊपर हम लोगों का बस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये केस लो रिस्क है, 50 ईयर से कम है, और कोई डायबिटिक नहीं है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, फीमेल है, और फीवर जो है क्लासिकल पैटर्न है, 2 दिन तक हाई ग्रेड है और उसके बाद फिर नॉर्मल हो रहा है या बॉडी एक के साथ है. ये सारी चीजें जो हम लोग लो रिस्क होम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर तमाम होम आइसोलेशन और होम ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस भी तैयार है. देन देयर पार्ट कम्स हाई रिस्क, बट दीज आर एसिम्प्टोमेटिक. ओके, हाई रिस्क एज वी नो कि कौन कौन से हाई रिस्क है, फिर भी एक बार अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे. लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ एल्डरली पेशेंट विद सम कोमॉर्बिड कंडीशन, ये सारी चीजें जो है वो हाई रिस्क है. लेकिन अभी उसमें उसको कायदे से अभी वो डिसैचुरेट भी नहीं किया और कोई अलार्मिंग साइन सिम्टम नहीं है, तो हम लोग उनको होम के लिए होम केयर या कोविड केयर सेंटर जो L1 सेंटर है उनके लिए सोच सकते हैं. देन इसी में से कुछ ऐसे भी पेशेंट होंगे जो कि तेजी से डिटेरियोरेट भी कर सकते हैं, और जो कि सिम्टोमेटिक है और हाई रिस्क भी हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉर्डर लाइन पड़ा हुआ है. हो सकता है कि दे मे नॉट फील कि उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके हिसाब से जजमेंट है कि नहीं, ये जो है बॉर्डर लाइन केस है, इसको हॉस्पिटल में रहना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो क्या कर सकते हैं. एंड जो 4th सब ग्रुप है उसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाई रिस्क भी है, सिम्टोमेटिक है और सैचुरेशन 95% से कम है, तो भाई आपको हॉस्पिटल जाना है और आईसीयू बैकअप के वाले हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छा है. तो इसके ट्रीटमेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है. एंड बेसिकली हम लोगों का जो आज का ये एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग आईसीयू ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल बेस्ड पेशेंट के बारे में डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे. हम लोगों को रिकॉग्निशन एंड रेशनल यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट पे ही फोकस करेंगे. सो नेक्स्ट, ये स्लाइड पे बहुत फोकस करने की जरूरत है. ये हाई रिस्क सिचुएशंस, तो डेफिनेटली हाई रिस्क वो है ये एज मोर देन 50. इनफैक्ट एम्स प्रोटोकॉल और WHO प्रोटोकॉल जो है उसमें एज मोर देन 60 इयर्स बताते हैं, पर
अब करंट सिनेरियो में 50 इयर्स के ऊपर को अगर हाई रिस्क समझा जाए तो कोई गलत नहीं होगा. Then there is comorbidity like cardiovascular disease, including hypertension, coronary artery disease, diabetes mellitus, or other immunocompromised states, or chronic lung disease, kidney disease, liver disease, or cerebrovascular disease, like that. Then family history of death due to acute COVID. This is very important. ऐसे केस हम मिल जा रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम लोगों की जहां तक सोच है उसके हिसाब से अभी बहुत हम लोग समझ रहे हैं कि अभी बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी स्टडी इसकी एपिडेमियोलॉजी और पैथोजेनेसिस में होना बाकी है, जिसमें कि जेनेटिक कंपोनेंट भी शामिल होगा. तो क्यों करके ऐसा होता है कि एक हॉल में बैठा हुआ एक सबसेट जो है उसको इन्फेक्शन हो जाता है और कई सबसेट जो और क्लोज बैठे रहते हैं उनको नहीं होता. ऐसे सबने देखा हुआ, ऐसे जो पेशेंट हैं जो सीरियस हैं, जो लेमेन के साथ है, उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं वो बॉडी तक हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एंड दे हैव नॉट कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज. तो देयर मस्ट बी सम जेनेटिक इन्फ्लुएंस. तो अगर आपके परिवार में किसी के, आपके मतलब पेशेंट के परिवार में अगर किसी की डेथ हुई है कोविड से, तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हाई रिस्क फैक्टर्स एंड यू शुड ऑलवेज टेक इट वेरी सीरियसली. देन मेल. अब मेल के ऊपर में भी बात आती है कि मेल और फीमेल, वाई नॉट फीमेल. तो पाया गया है कि इस पे भी कोई बहुत क्लियर कट लोगों का वो नहीं है कि क्यों मेल में ज्यादा होता है. लेकिन हाँ, ये मानते कि मेल में शायद ACE2 रिसेप्टर्स ज्यादा अच्छे से एक्ट करते हैं, शायद एक्स क्रोमोसोम का कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर है, या फिर सेक्स हार्मोन्स वो कुछ रोल प्ले करते हैं, या फिर मेल की जो लाइफ स्टाइल है थोड़ी इररिस्पॉन्सिबल और थोड़ा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, वो सारी लाइफ स्टाइल इसमें है. In any case, maybe, but what the epidemiology shows that male are towards more high risk than female. Okay, so this group is over. Now, in a given patient, high risk symptoms that you have to maintain. If in any patient there is persistent fever more than 5 days, this is something very much. This should arouse suspicion. पेशेंट डिटेरियोरेट कर सकता है, डिसैचुरेट कर सकता है. देन हाई ग्रेड फीवर ऑफ more than 103 degree without medication, or more than 101 degree with medication. There may be chills and rigors. Breathlessness is something जो कि आपकी फीलिंग है. अगर पेशेंट को ये फील हो रहा है, अव्वल तो इसमें ज्यादातर करके ये हो रहा है कि हाइपोक्सिया हो सकता है, उसे फील ही ना हो. मरीज को पता चला कि पल्स ऑक्सीमीटर पे आप लगाओगे वो 86, 88 आ रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, बड़ा आराम से बैठा हुआ है, मोबाइल कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है. तो ब्रेथलेसनेस अगर लेकिन पेशेंट को खुद फील हो रहा है, देन दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड, और इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते. उसको हम लोगों को लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा. एंड अगर फीवर एक बार ठीक हो गया और 5वें दिन के बाद फिर से फीवर अगर आ रहा है, बाइफेजिक फीवर, दिस इज वेरी हाई रिस्क सिम्टम. सो this is another high risk situation. Then we know that investigations, serial investigations कैसे करना है, उसकी क्या rationality है, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. But we know that rising inflammatory markers like CRP or LDH or ferritin or whatever. So this, if it is rising from previous level, then the condition is going to deteriorate probably. And if we find significant chest infiltrates in X-ray or CT scan, that CT severity is scored, we will come to that. And foremost thing is hypoxia. Hypoxia, it's a clearly ominous sign. And see, the single reading of hypoxemia pulse oximeter saturation less than 94, it is there. But what is more important, if the patient was already having 97, 98, and on another time if it's 95,
So the difference of 5% is significant. Once it comes below 94, then it's already significant. But we have to judge that, like in patient of COPD, whose baseline SpO2 maybe say 93, 92 all the time. In those cases, if there is 5% decrease of SpO2, then this is very significant. So with, keeping this all high risk situation in mind, we now think how to manage the cases which already presented. So here was 77-year male, so age was high risk, and आपने उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन पूछा, if it is 94%, तो other things are not that significant, not that high risk. Of course they need to get admitted, लेकिन अगर बेड की क्राइसिस से आप उनको उनका एंजाइटी फैक्टर नहीं बढ़ाना है, आपको एक स्टेरॉइड की एक डोज तो दे ही देनी है. मिथाइलप्रेडनिसोलोन आपने 16 mg या 32 mg जैसा आपने समझे 16 mg आपने दे दिया, और उसके बाद आपके पास 6 घंटे का एक कुशन पीरियड हो गया. उस पीरियड में ये बंदा अगर चाहे तो एडमिट होना चाहिए, इसको अपनी बेड तलाश करना शुरू करे और जहां अच्छी जगह मिले वहां एडमिट हो जाए. देन अनदर सबसेट 57-year diabetes mellitus, but here you see this is uncontrolled, something uncontrolled diabetes, but SpO2 is 97%, which is reassuring, which is really reassuring. So इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एज फैक्टर भी हमारे फेवर में है, फीमेल है फेवर में है, ठीक है, डायबिटीज हमारा एक बहुत रिस्क फैक्टर है, बट डे 7 में फीवर आ रहा है तो हम लोग को सावधान तो रहना पड़ेगा. वी शुड follow this type of patient, properly evaluate diabetes status, and provide home care with advice of investigations. And the third case 72-year है, इसमें आप देख रहे हैं कि नो फीवर एट प्रेजेंट, तो डे 5 पे ही फीवर खत्म है, तो इसमें हम लोगों को मॉनिटरिंग की जरूरत ज्यादा है और तुरंत एक्टिव इंटरवेंशन कुछ नहीं करना. Then another जो 3 cases थे, this is 43-year-old, अब ये थोड़ा सा यंग हो गया, यंग है लेकिन 7 days फीवर है एंड एवरी 6 आवर, तो इसमें भी स्टेरॉइड देना है, एवेलुएट करना है और बेड को आपको बुक कराने के लिए तुरंत लगा देना है. ये जो सबसेट है पेशेंट का जो कि बहुत एल्डर, इसमें कई सारे फैक्टर्स लोगों के मन में भी आ जाते हैं कि इसको रिपोर्टिंग तक नहीं करते, बहुत लोग इसमें रिपोर्टिंग भी नहीं करते कि हाँ हम RT-PCR कराएंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो पता चला कि होम आइसोलेशन हमें नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल को भेज, बहुत सारी चीजें हैं. उन सारी मैंने एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये एडमिशन के लिए रेडी तो नहीं है, तो इनको हम लोग होम केयर तो देंगे, लेकिन हाई रिस्क होम केयर प्रॉपर आपको इसमें काउंसलिंग, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करनी होगी कि किस तरह से क्या होने पे क्या करें, होम ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर वगैरह वगैरह जो कुछ भी कर सकते हैं उसको करते हुए मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये हाई रिस्क होम केयर के अंदर आएगा. देन द लास्ट, इसको पहचानना जरूरी है, 35 ईयर है और हाई ग्रेड कंटिन्यूअस, दिस में भी एक्यूट सीवियर कोविड निमोनिया, इसको पहचानना है और पहचान करके इसको तुरंत हमें इंटेंसिव मैनेजमेंट करने की जरूरत है. ये वो पेशेंट है जिसमें आपको शायद रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी और व्हाटएवर जो कुछ भी मतलब फुल फ्लेजेड ट्रीटमेंट जो है वो आपको इस ग्रुप में देना होगा. ठीक है, तो नाउ आ जाए होम केयर पे. तो होम केयर की जो पॉलिसी है वो दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स. अगर ये प्रीरिक्विजिट्स अगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो होम केयर थोड़ा बेमानी है, और ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर शुड बी बिल्कुल क्लियर कट रिटन मैनेजमेंट प्लान. कुछ भी समझाने से जितना आप समझाओगे वो चीज तो भूल गए, वो अगर भूल गए याद भी है, अगर वक्त खराब हुआ तो फिर वो आपके अगेंस्ट में ही इस्तेमाल होगी. लेकिन जो हमने लिख के दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो हमारा जो भी मॉनिटरिंग का चार्ट है या जो भी रिटेन मैनेजमेंट प्लान है, इमरजेंसी में क्या करना है, कब क्या दवा देना है, एवरीथिंग शुड बी रिटेन एंड वेल कम्युनिकेटेड। प्रॉब्लम ये भी है डॉक्टरों के पास, हम लोगों के पास कम्युनिकेट करने का समय नहीं है, पर दीज आर द थिंग्स जहां पर कि आपको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पूरी तरह समझनी पड़ेगी और कम्युनिकेट करना पड़ेगा। देन देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, caregiver availability, nearby health facility, home collection of investigation, isolation facility, separate washroom. These are all the guidelines are given by various government guidelines are there. And you should control the anxiety, controllable anxiety should be there. And apart from this, so this is all about home care. So you should avoid, इसमें they have uncontrolled diabetic with obese, then you should avoid for home care. Now, this is one of those charts that Dr. Dhiren Gupta has shared, that this is some monitoring chart, home-based monitoring chart, in which every word is important, right from age to sex to all status, weight, height, diabetes, hypertension, and everything should be filled up properly, giving due considerations to timing as well. Okay, so इतने के बाद अब हम समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हम लोग आगे रिकमेंडेशन कर रहे हैं उसके पीछे क्या है। एविडेंस तो चूंकि अभी ये डिजीज उतनी पुरानी नहीं, तो बहुत ज्यादा एविडेंस तो हमारे पास है, बट वट एवर एविडेंस इज अवेलेबल देयर, इट्स मेनली एक्सपीरियंस। हर डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस है कि हमने ये किया तो ये मिला और ये किया तो ये मिला, और उसके साथ में उसके एग्जाम्पल्स, अगर यही सब मिलते हैं तो रिकमेंडेशन होता है। और ये जो कोविड इन एडल्ट्स की जो गाइडलाइन है, इसके लिए भी जो हमारी इसके राइटिंग पैनल में लोग हैं, वो उन्होंने बहुत सारी लिटरेचर की स्टडी करके और सारे रिसर्च करके ये अपना एक प्रोटोकॉल बनाया। और इसको भी जब से राइटिंग इनकी जो फर्स्ट आई थिंक अप्रैल की शुरुआत से लेकर के अब तक में 3 बार इसको रिवाइज किया जा चुका है। साइंटिफिक कन्वेनर जो भी टीम है, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर आनंद देशपांडे एंड डॉक्टर सीपी बंसल एंड डॉक्टर धीरेन गुप्ता, ऑल सो सारे इसमें हम लोग एम्स के भी गाइडलाइंस को लेते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईसीएमआर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, सारी गाइडलाइंस का रिसेंट डेटा से देख करके इसको अपडेट किया है। तो लास्टली इट वाज अपडेटेड, जो अभी जो चल रहा है ये 24th का अपडेट वाला ये पीपीटी है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पैथोजेनेसिस, जो कि समझना है कि किस तरह से चीजें काम करती है, एंड हाउ डू वी मॉनिटर, हाउ डू वी डायग्नोज, हाउ डू वी प्रोसीड, एंड देन लास्ट कम्स की क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और शायद मैं कहूं कि इस एक स्लाइड में पूरे का पूरा कोविड का मैनेजमेंट से लेकर पैथोजेनेसिस छुपी हुई है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो इसको बहुत ध्यान से देखें। ये यूजुअली आप देख रहे हो कि ये वो समय है जब मरीज को जीरो, इसको मानिए यहाँ पे उसने वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया। नाउ दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड, एंड after say 5 days of incubation period, this first symptom, you have to note the first symptom जिस दिन है उसको हम लोग कहेंगे day 1, we all know। तो जो वायरीमिया का फेज है, वो जब सिम्टम आ रहे हैं उसके करीब 14 to 15 आवर्स, यानी कि करीब 1 दिन 1.5 दिन पहले से वो वायरीमिया चल रहा है, दैट इज प्री सिम्टोमेटिक फेज। और वो पीक पे है, जब सिम्टम आया तो उस वक्त वो पीक पे है, और उसके बाद धीरे धीरे वायरल रेप्लिकेशन, एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। शरीर की अपनी एडेप्टेड इनेट इम्यूनिटी होती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनने शुरू होते हैं, और वायरस धीरे धीरे उसका अगले 7 to 10 डेज में जाकर के वायरस का रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। ठीक है, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग पॉजिटिव आरटीपीसीआर इज बेस्ड ऑन day 1 when you have maximum viral load. Now अब इस एक जो day 1 हुआ उसके बाद से वो
जैसे जैसे वायरल का रेप्लिकेशन कम होता जा रहा है, वो सारी चीजें फीवर वगैरह धीरे धीरे सबसाइड करते जाते हैं, और एक कॉमन मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में, मोर देन 60% पेशेंट में डे 2 डे 3 के बाद जा करके वो फीवर वगैरह कम होते हुए डे 7 तक आते आते फीवर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो यहाँ बचते हैं वो वायरल के पार्टिकल्स, वायरल डिब्रीज बचते हैं। अब यहाँ पे जो कोविड की स्पेशलिटी है, यानी कि इम्यून इन्वेजन एंड डिसरेगुलेटेड इम्यून इन्वेजन, ये इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये जो डिसरेगुलेटेड है, इसमें आपके थोड़े से वो भी होते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट इन्वेजन है, देन देयर आर कोएगुलोपैथीज, साइटोकाइन स्टॉर्म, और ये सारी चीजें जो डिसरेगुलेटेड होती है, इसकी वजह से लंग का डैमेज होना ज्यादा शुरू होता है। एंड एट दैट टाइम यू स्टार्ट हैविंग योर क्लासिकल रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। सो यू मे सी दैट ऑन डे 1 अगर आपने कराया, सीटी स्कैन भी कराया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। तो ये बेसलाइन देखने के लिए सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ता है डे 7 टू डे 14, वो डिपेंडिंग ऑन इफ देयर इम्यूनिटी इज कंट्रोल्ड और नॉट, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे इन्फ्लेमेटरी कोएगुलोपैथी की वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। नाउ आफ्टर 2 वीक्स के बाद कई सारी चीजें हो सकती है। कोई अगर कॉमन केस है तो वो तो 7 डेज पे ठीक हो गया, वो अपना आराम से उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी करते रहेगा। कुछ सबसेट होते हैं जो कि पोस्ट कोविड स्टेट में पहुंच के उसकी कॉम्प्लिकेशंस अपने धीरे धीरे, ये आपको इसमें भी कभी हाइपोक्सीमिया और कुछ जो भी प्रॉब्लम्स होते हुए धीरे धीरे अपना समय 2 to 6 वीक्स तक बढ़ते हुए ठीक होते हैं कुछ प्रॉब्लम। देन अगर वो सब कुछ ठीक भी हो रहा है, देन दे मे प्रोग्रेस टू क्रॉनिक लंग डिजीज, एंड इन सम स्मॉल सबसेट they may have this hyperinflammatory syndrome right from day 7. Day 7 के बाद वो पता चला काफी दिन तक ठीक है, और उसके बाद फिर 1 महीने 2 महीने के बाद day 7 से वो सीधे वो hyperinflammatory syndrome की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो this is roughly in short about basic pathogenesis. Okay, so now these are the common symptoms that we should understand and recognize, that there is massive headache. Now congestion or runny nose and new loss of taste or smell. Usually once the patient tells that खाने में स्वाद नहीं आ रहा, महकने में नहीं आ रहा, this is in some literature it has been written as it is as good as RT-PCR, but and also this एक तरह से ये वो है, हमें संतुष्टि है कि हाँ ये पेशेंट यूजुअली दे आर माइल्डर वेरिएंट एंड दे शुड कम आउट विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम. Then there is cough and sore throat, and in this we have there is significant sore throat, but the pain is, you say it is bilateral. If it is unilateral, if the cough is unilateral, then this is something not suggestive of COVID. You can think of some bacterial cause of sore throat. So in COVID, usually it's bilateral. Then, of course, shortness of breath or difficulty in breathing, and fatigue, muscle or body aches, fever and chills, nausea, vomiting, diarrhea. This year, for last 2 months, not only adults, that we are seeing enough of children who are COVID positive and they present with gastrointestinal and abdominal symptoms. In some cases, even without fever. The main presentation is only gastroenteritis and pain abdomen, and we can evaluate, we can investigate, and they come out to be RT-PCR positive. So this is a case. Just to share that 48-year poorly controlled diabetic, fever 7 days, loss of taste. So here loss of taste was there. Okay, loss of taste was there, but this patient
himself, you can see that on day 9, oxygen saturation is 93%, and eye inflammatory markers are also raised, and CT severity score is 12. So loss of taste and smell doesn't give guarantee in high risk patients, particularly of diabetes. Okay, so now investigations. We now understood कि पैथोजेनेसिस क्या है, किस तरह के पेशेंट को हमें होम केयर देना है और किस तरह के पेशेंट को इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए मोटिवेट करना है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन किस तरह से बढ़ते हैं। तो 3 हेड्स हैं बेसिकली। पहला वायरस इटसेल्फ, तो हमें वायरस का स्टेटस पता करने के लिए इफ इट इज कोविड और नॉट, और इफ इट इज कोविड देन वी शुड try to isolate virus. So there are RT-PCR, then rapid antigen, फेलुडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट। ये आया तो है पर बहुत ज्यादा अभी ये कॉमन नहीं है, प्रचार में नहीं है ये। दिस इज FNCS9 फेलुडा एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे। सो एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट है ये, जो कि 15 मिनट में रिपोर्ट देता है और अच्छी खासी इसकी है, लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं में आया। देन एंटीबॉडी टेस्ट, जिसका कि वायरल के उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस इज मोर टुवर्ड्स फॉलो अप or in other cases when some convalescent plasma is tried to be incorporated in treatment. Then inflammation, this is very important that whatever the pathology जो भी है उसकी वायरस के बाद इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हो रही है और कोएगुलोपैथी की वजह से। तो so we should do CBC, blood counts, or CRP, then CRP, ferritin, D-dimers. These are commonly used. Otherwise, in selected cases, we can try to get IL-6 or say procalcitonin in suspected cases where sepsis is also suspicious. That is also suspected. Then for pneumonia, then radiology chest X-ray or CT scan chest. We will see one by one what is the status of this. So first, जो भी एक पेशेंट आ रहा है वो सबसे पहले फोन भी कर रहा है, तो सीटी रेशियो, सीटी वैल्यू, भाई आरटीपीसीआर में सीटी वैल्यू 18, वी नो ओवरऑल दैट सीटी वैल्यू वंस, जितना ज्यादा सीटी वैल्यू है उतना उसमें वायरल लोड कम है। बिकॉज व्हाट इज सीटी वैल्यू? सीटी इज साइकिल थ्रेशोल्ड। तो साइकिल थ्रेशोल्ड रिफर्स टू द नंबर ऑफ साइकिल्स नीडेड टू एम्पलीफाई वायरल आरएनए टू रीच अ डिटेक्टेबल लेवल। तो कितनी साइकिल चल रही है? अगर किसी का 9th साइकिल या 10th साइकिल में ही अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब उसमें वायरल लोड ज्यादा था, जिसकी वजह से वो 9th साइकिल में ही उसने इतना जनरेट कर लिया आरएनए कि वो फ्लोरेसेंट अपना मार्कर दे करके उसको पॉजिटिव आ गया शो। और लाइकवाइज इसी तरह से। बट दिस इज एक ही पेशेंट में ये बहुत वेरी करता है। जैसे अगर आपने इंक्यूबेशन पीरियड के पहले लिया, इंक्यूबेशन पीरियड में लिया, अगर आपने फीवर के पहले ले लिया या फीवर के 1 हफ्ते 10 दिन बाद लिया, तो इट कैन रिमेन पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि वायरल डेड वायरल पार्टिकल्स भी है। तो डे 10 डे 14 पे अगर लिया तो उस समय भी ये फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है। एंड ए डेफिनेट केस में 7 डेज के बाद अगर हम सीटी वैल्यू कर रहे हैं या आरटीपीसीआर कर रहे हैं तो वहां फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। तो सीटी वैल्यू का बहुत ज्यादा रोल नहीं है जज करने में बीमारी की सीवियरिटी को, and because it depends on many parameters like, और सेम पेशेंट में अगर आपने मॉर्निंग में खाली पेट लिया है तो उसकी सीटी वैल्यू कम आएगी, और सेम पेशेंट का अगर शाम तक लिया तो सीटी वैल्यू उसकी ज्यादा आ सकती है। तो ये डे ऑफ कलेक्शन से भी, टाइमिंग ऑफ कलेक्शन, टेक्निक ऑफ कलेक्शन, कैसे स्टोरेज सैंपल कर रहे हैं, इन सारी चीजों से ये डिपेंड करता है सीटी वैल्यू। सो इट शुड नॉट बी गिवन एनफ इंपॉर्टेंस, एंड देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर सीटी वैल्यूज across RT-PCR platforms as well. So another important is NLR.
जैसा कि एक्चुअली ये जो कोविड है, दिस इज, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि लिम्फोसाइट्स जो बीमारी से लड़ने वाले हैं, उसमें व्हाट वी एक्सपेक्ट कि CD4 काउंट्स बढ़े तो ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है. देन अगर लिम्फोपीनिया है, दिस इज नॉट इयोसिनोफिलिया, दिस इज बेसिकली लिम्फोपीनिया which is associated with morbidity or mortality, you can say. So normal neutrophil lymphocyte ratio is between 2 to 3, and we know 45 to 50, 50 to 60, up to 60% is neutrophil and 30% is lymphocyte. So it is between 2 to 3. Once it is less than 4.5, okay, तो लेस देन अगर 4.5 है तब तक इतने लिम्फोसाइट काउंट हैं कि दिस प्रिडिक्ट्स दैट इट इज लेस सीवियर डिजीज एंड विथ 82% सेंसिटिविटी. बट इफ इट इज more than 6 or say 6.5, then in one study it was seen that the larger the number of NLR, neutrophil lymphocyte ratio, it predicts mortality with 83 sensitivity. Okay, so this is also important, but again it is the progression which is important. A single reading should be commented with some say with a pinch of salt, and we should carry forward for a serial measurement of all these investigations. So alone NLR ratio should not be considered, should be combined with other factors, because steroids can alter the ratio too. एक बार ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है. Then CRP, जिसके बारे में जितना बात किया जाए कोविड के सिलसिले में वो कम है, क्योंकि CRP is in fact the most important marker to show the progress of COVID. Okay, so you see, it is not indicated on day 1 at baseline after symptoms onset. कोई baseline अगर हमने CRP का करा लिया है तो उसका कोई significance है नहीं. बेसिकली CRP का जो सबसे सही समय है वो सब लोग जानते हैं, day 5 onwards, जबकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होती है. अगर वायरल रेप्लिकेशन कम होकर वायरल डिब्रीज, वायरल इन्फिल्ट्रेशन हुआ और उसके ऊपर जब आपका इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ तभी तो CRP बढ़ेगा, एंड देन इट इज इंपॉर्टेंट आफ्टर day 5. Okay, so when CRP is significant, single level अगर CRP, if it is more than 70 milligram per deciliter, this is associated with low oxygen level and poor prognosis. And patient with 40 milligram have severe symptom, and with 20 milligram mild symptoms. So it is far more important that trend of CRP with persistent of symptoms should be considered significant, and we should hospitalize this type of patient with ICU backup. Okay, so this is all about CRP. Now just see, this is a case, 40-year male with 10 days of fever, and it is today's day 3 of admission on steroid. You see, on steroid. So he was hypoxic on 10 liter oxygen in morning. CRP is negative, persistently to be negative for next 10 days, but other parameters, you see D-dimer or IL-6, these are increased, and the patient itself, it has shifted to ICU HFNC. So what we want to tell that CRP भी अपने आप में बहुत ज्यादा उतना नहीं, सारी चीजों को मिला करके ही देखना चाहिए, क्योंकि इसके एक्सरे में भी जो है कहीं कहीं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, कुछ नहीं है, CRP नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट की जो अपनी पोजीशन है वो उससे बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है. सो alone CRP should not be relied upon. Now D-dimer. D-dimer again, D-dimer एक प्रोटीन है
जो कि आप लोग कोएगुलेशन कास्केड में मिल रहा है, और these are the fibrin degradation products. The normal reference concentration of D-dimer is less than 400 nanogram per ml or say less than 0.4 microgram per ml. So D-dimer value on admission greater than 2 microgram per ml, that is 5 times अगर वो admission के समय में है, then this could effectively predict in hospital mortality with a sensitivity of 92%. तो 5 times अगर D-dimer की value बढ़ी हुई है, then this is very important. Okay, now इसका और क्या सिग्निफिकेंस है? जो हम लोग एंटी कोगुलेंट थेरेपी साथ में देनी है उसको टाइट्रेट करता है. टाइट्रेट करने में इसका रोल है कि D-dimer लेवल में भी एलिवेटेड, ये भी इनका भी फॉल्स पॉजिटिव आपको ध्यान देना पड़ेगा D-dimer के लिए. लाइपीनिया है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल और एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल, rheumatoid factor level or hemolysis. In these cases it may be false positive or may be elevated in setting of pregnancy, inflammation, malignancy, trauma, post-surgical treatment or liver disease and heart disease. So D-dimer, this is all about D-dimer. So and the very important thing is that कि D-dimer का जो सैंपल है उसको लेने में भी बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी है कि ये लैब से जैसे लिया तुरंत ट्रांसपोर्ट कर नहीं रहे हैं अगर, तो उसका प्लाज्मा निकाल करके उसको सॉलिड आइस में, ड्राई आइस में उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. Then comes interleukin 6. So this is a surrogate marker of CRP. This does not always correspond to CRP, but in majority of the cases it corresponds to CRP. And actually interleukin 6 over 25 units is independent risk factor for progression to severe disease and in hospital mortality. And if it is more than 80 in combination with CRP more than 97, it is highly predictive of respiratory failure. So IL-6 has that immune regulator, that role. So IL-6 rising levels, rising trends, especially more than 3 times, are important to predict complicated disease. It may be false positive if sample is not processed properly. Okay, now you see this is another case to show. It is 56-year male. आप देख रहे हो 11th day 11 तक सब ठीक चल रहा है, CRP नॉर्मल है, D-dimer नॉर्मल है, फेरिटिन नॉर्मल है, सब नॉर्मल है. ट्रीटमेंट उसका अपना एनॉक्सापैरिन रेमडेसिविर चल रहा है. व्हाट हैपेंस दैट ऑन डे 14 लो ग्रेड फीवर आया और आप देखो CRP इनका पहले से 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स CRP बढ़ा. एंड IL-6 हम लोगों ने कराया तो वो भी 32, दैट इज क्वाइट हाई. और जस्ट नेक्स्ट डे वो डिसैचुरेट कर रहा है एंड इसका CRP अगेन इट इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग. सो दिस इज, ये एक तरह का केस होना चाहिए जिसके ऊपर हमें फर्दर इसको समय से पहचाने और समय से पहचान करके डे 13, डे 14, डे 15 पे भी इसको अगर हम डिसैचुरेट होने से फर्दर बचा सकें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मार्कर होगा कि किस तरह से बढ़ना है. इट इज द ट्रेंड विच इज मोर इंपॉर्टेंट rather than a single reading. So trend of CRP IL-6 predicted the severe disease before hypoxemia. Cetirizine remdesivir does not guarantee no pneumonia. Now ferritin. Ferritin is a marker of macrophage activity, and increase in ferritin value as a marker of prognostication predictor thrombosis in diabetics. Ferritin is the last marker which returns to normal, that is lag of 5 days after CRP. So अगर ferritin बढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा है इसके लिए लंबे समय ठीक है. CRP अगर नॉर्मल है, ferritin बढ़ा हुआ है तो ये थोड़ा वेट एंड वॉच वाली ही कंडीशन है. Then trend rather than the threshold value, again trend is more important, and rising ferritin with deranged LFT and developing cytopenias
predict macrophage activation. Now, chest imaging, this is most inappropriately used modality, जिसका कोई routine use नहीं है, and especially अगर X-ray देखा जाए, routine X-ray, it is least sensitive. HRCT is most sensitive, and ultrasound chest is not evaluated to a great extent. Now, indication of chest imaging. ये पहले कुछ था, इस जो नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये है कि चेस्ट इमेजिंग अगर ठीक से की जाए, इवन दोज पेशेंट जो कि RT-PCR नेगेटिव है बट देयर इज स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन, if there is difficulty in diagnosing differential diagnosis or complication or confusion in decision making, क्योंकि 1 वीक के बाद अगर हम CT स्कैन करा रहे हैं तो उसकी जो RT-PCR नेगेटिव है डे 10 पे, डे 7 पे, डे 9 पे RT-PCR अगर नेगेटिव है तो उसमें भी CT की फाइंडिंग इज ऑलमोस्ट अबाउट, इट इज 97% सेंसिटिव इन डायग्नोजिंग कोविड. सो दिस इज अ केस. CT score is 11, total count it is decreased. You can say NLR ratio lymphocytes are quite reduced, and the CRP is well normal. 43-year-old, fever 7 days, every 6 hours 101. Now 7 days of fever, and what will you do in this? Whether you would go for non-contrast low dose chest CT, because अगर वो भी है इसमें CT स्कैन में अगर एक बार आपने इंस्पिरेटरी फिल्म अगर 6 सेकंड की भी मिल गई, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपिरेटरी फिल्म, सो वी कैन रिड्यूस द डोज ऑफ चेस्ट CT unless and until CT pulmonary angiography is required to detect pulmonary embolism. That is good enough. So HRCT, what is expected? See, in all asymptomatic patients, chances of normal HRCT is 46%. So if patient is asymptomatic, there is hardly any need of going for HRCT. If it is symptomatic, then it should be done after 5 days, because if it is done in less than 5 days, the chances of getting normal is quite high. बट आफ्टर 5 डेज अगर हम लोग कर रहे हैं HRCT को सिम्टोमेटिक के तो उसमें बहुत अच्छी फाइंडिंग्स मिलेगी. एंड अगर आफ्टर 5 डेज इनमें सिम्टोमेटिक दे आर 97% सेंसिटिव एज आई टोल्ड यू अर्लियर. नाउ क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दिस इज यू सी ग्राउंड ग्लासिंग यू कैन सी पेरिफेरीज पे आप देख रहे हो ग्राउंड ग्लासिंग मींस दिख तो रहा है आर पार. you can judge this vascular markings. ये vascular markings आपको दिख रही है पर थोड़ी धुंधली दिख रही है, एंड क्लासिकली ये पेरिफेरीज में हो रहा है, ये इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंट ऑफ कोविड है. देन इसके बाद की स्टेज में देयर इज सेप्टल थिकनिंग सुपर इम्पोज्ड ओवर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी. दिस इज कॉल्ड क्रेजी पेविंग and towards the border side areas. Then ground glass opacity बढ़ती जाती है and it becomes considered haziness with bronchovascular markings are not seen in background. Plus there is air program. Okay. Now it is the is by ground glass opacity and in that ARDS. So how do we score? There are two things. One is CORADS classification, that is standardized reporting system for patients with suspected COVID-19 infection developed for a moderate to high prevalence setting. And then there is severity score, which is percentage of lung involved. How? Let us see this. CORADS is scoring for diagnosis that, like, you can see if suspicion is normal finding or abnormalities are non-infectious, then it is CORADS 1, or if it are consistent with infections other than COVID-19, it is 2, or if the findings are consistent like ground glass opacity and crazy pavement, these are
just about to be present, then it is not clear, then this is CORADS 3. And CORADS 4 is when it is strongly suspicious for COVID-19. And once it is typical of COVID-19, we say it is CORADS 5. But once along with this PCR is also positive, we say it is CORADS 6, that is 100% diagnosis of COVID. Then what is least expected? कोविड के एक पेशेंट में अगर अभी तो चलो कोविड, हर चीज में कोविड मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोगों का कोविड के लिए बहुत ज्यादा एंटीना भी चार्ज है कि हाँ ये कोविड हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में बाद में कुछ फाइंडिंग्स जो कि कोविड से मिलती भी है बट क्लासिकल कोविड में नहीं मिलती है, लाइक प्लूरल इफ्यूजन or tree in bird sign or lymphadenopathy or pericardial effusion with cavitating lung lesions. These are more suggestive of tubercular origin or something like that. So now see this. ये आप देख रहे हो राइट साइड अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब. उसी तरह से लेफ्ट साइड अपर लोब एंड दिस इज लोअर लोब. तो टोटल हो गए 5 लोब. हर लोब को 5 पॉइंट दिया गया. 1 पॉइंट 5% ऑफ नॉर्मलिटी, 2.5 to 25%, 3 25 to 50%, 4 50 to 75. कोई लोब कितना ज्यादा डैमेज है, उसमें कितनी एबनॉर्मलिटी है, इसके हिसाब से हर लोब की स्कोरिंग अलग अलग होती है. और पांचों की स्कोरिंग को अगर हम जोड़ देंगे तो इट विल बी 25. तो कहने का एक लाइन का मतलब ये भी है कि अगर स्कोर 5 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो है करीब करीब 25 आउट ऑफ 25 20%. 20% डैमेज होना कोई जरूरी नहीं है, ये इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. हर लोब को पहले कोरोनल प्लेन में लेते हैं और उसके बाद स्कोरिंग करते हैं पर लोब का, एंड देन वी कैलकुलेट कंप्लीट स्कोरिंग. ओके, सो 3D वॉल्यूम. तो इस तरह से करेंगे 5 आउट ऑफ 25 डज नॉट मीन 20. इस तरह से करके हम लोग टोटल स्कोरिंग करते हैं. तो जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर का है वो अगर माइल्ड है तो लेस देन 7 स्कोरिंग है, अगर 7 to 17, 8 to 17 है इट इज मॉडरेट, एंड इफ CT सीवियरिटी स्कोर इज मोर देन 80 इट इज कंसिडर्ड सीवियर. अब हर चीज इसमें CT स्कोर और क्लिनिकल कोर्स प्रेडिक्शन, अगर हाइपोक्सीमिया नहीं है तभी अगर मॉडरेट केस है तो हम लोगों को अपना क्लिनिकल कोर्स को प्रेडिक्ट करने में थोड़ी आसानी सी रहती है. ओके, लेकिन ये भी एक अजीब, ऐसे आपको पेशेंट मिल जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल पता चला कि CT स्कोर सीवियर में आ रहा है लेकिन उसको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हाइपोक्सीमिया भी नहीं हो रहा है. मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं. तो ये बहुत एक किसी भी कहने का मतलब किसी भी एक चीज को लेकर के हम लोग नहीं रख सकते. इट्स ऑलवेज द फाइनल डिसीजन ऑफ टेकिंग मेनी थिंग्स इनटू कंसिडरेशन. और कहीं भी अगर कोई पॉइंट सिग्निफिकेंटली डिरेंज मिल रहा है तो उसको हमें अलग से उस पॉइंट पे फॉलो करना पड़ेगा. सो देयर इज नो हाइपोक्सीमिया इन 50% ऑफ पेशेंट with CT severity score of 8 to 70. And what Dr. Dhiren had seen that 2 patients with severe scan results did not require oxygen support. That is there. Okay. So now after this investigation, rational investigation, we come to therapy. Therapy में basically जान रहे हैं हम लोग 3 तरह के ग्रुप्स हैं, एंटीवायरल, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स और एंटीबॉडी. जब तक वायरल का रेप्लिकेशन है, वायरल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उस वक्त तक एंटीवायरल काम करेंगे, फिर इम्यूनोमोड्यूलेटर एंड इन सम केसेस एंटीबॉडीज. व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, और जैसा कि ऑल स्टडीज में बहुत अब तक ये और सारी गाइडलाइंस में धीरे धीरे ये बात आ चुकी है कि देयर इज नो रोल ऑफ
that vitamin C, vitamin D, ivermectin, azithromycin, doxycycline, HCQ, or favipiravir, lopinavir, nitazoxanide, like that, Anakira. So इनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए हमारे पास बहुत कम चीजें हैं. तो लिखने में दिक्कत ये है कि एक बार आप लिख तो देते हो, मरीज को प्लेस, दे एक्ट नथिंग बेटर देन प्लेसबो. बस नुकसान ये होता है कि उसका स्क्रीनशॉट होता है, व्हाट्सएप होता है, और वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाता है, जिसके लिए वो रामायण हो जाता है कि हाँ भाई आपने ये दवा लिखी थी, ये दवा फायदा करी, ये करो. तो इस चीज को कम्युनिकेट करना जरूरी है, उसके पहले खुद समझना जरूरी है कि प्राइमरीली जो है वो हम लोग अगर चाहें तो सिर्फ रेशनल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग और जहां जैसी जरूरत पड़े उसके हिसाब से आपको काउंसिल करते हुए काम करना है. ओके, सो these are the therapeutic classes to be discussed, like antiviral, convalescent plasma, remdesivir or antibodies, and there are immunomodulators, corticosteroid and JAK inhibitors like baricitinib. Now this baricitinib has gained another new interest. It is JAK inhibitor, and it is a drug which it is oral, okay, oral medicine. So this may prevent that cellular immune activation and inflammation. In combination with remdesivir, it has been tried, but there is no conclusive evidence, and people are using under emergency use authorization, comes with name of Barinet, like that. Okay, so now again we go to the same graph originally. We know that the class of antibodies will act only when till the time कि जब तक वो वायरस फुल फ्लेजेड नहीं हो रहा है, यानी कि जब तक कोविड निमोनिया नहीं है उसके पहले के फेज में, और उसमें भी पॉलीक्लोनल कन्वालेसेंट सीरा और मोनोक्लोनल बैमिलानिविर और कॉकटेल रेजिम जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भी बड़ा फेमस हुआ था, वो ये सारी चीजें, ये सारे एंटीबॉडीज बेसिकली इनका जो है प्रिवेंटिव रोल ज्यादा है, ट्रीटमेंट के पार्ट से रोल कम है, क्योंकि वायरस का तो कोर्स ही जहाँ पे खत्म हो रहा है वो फर्स्ट वीक के बाद में तो इम्यून रिस्पॉन्स वाला प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है. तो उसके पहले अगर पेशेंट इतना सिक है या कोविड निमोनिया में भर्ती हुआ है, लेकिन कहते हैं कि कोविड के केस में भर्ती तो हो लेकिन कोविड की वजह से ना भर्ती हो, दूसरी चीजों, दूसरे कॉजेस की वजह से भर्ती हो, वी हैव टू एक्सप्लेन इट समवेयर द अदर. बट इन एनी केस जैसे पॉलीक्लोनल कन्वालेसेंट सीरा है जो लास्ट ईयर, ये आप कहाँ से लाओगे, जो लास्ट ईयर वाला था वो स्ट्रेन ही कोई और था, वो आपको सीरा लेना और इस साल के स्ट्रेन अलग है, तो दैट आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू सो मच. एंड अगेन रेमडेसिविर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. देयर आर स्टेरॉइड्स दैट आर द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट एंड एंटीकोएगुलेंट like LMH and oral. Okay, so remdesivir, supposedly this is most disputed drug in COVID management line, and indication, we have to get definite indication. So, and the contraindication and controversy regarding this. So what are the indications? Progressive pneumonia with minimum oxygen demand. The patient should be high risk with significant chest infiltrated with symptoms, no oxygen requirement, and best result if used early, that is within first 12 days. And then there are some contraindications. So these are the indications of remdesivir. Remdesivir के साथ में ये है कि WHO ने पहले अब जो लास्ट जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के बाद रेमडेसिविर को उन्होंने अपने तो क्राइटेरिया से हटा दिया. और क्योंकि इसमें जितनी भी स्टडी हुई है बेसिकली कायदे की स्टडी नहीं है, जो भी स्टडी है उसका जो एंड पॉइंट है वो मोर्टेलिटी से लिया है, मोर्टेलिटी बेनिफिट के हिसाब से उसका एंड पॉइंट लिया है. ज्यादातर स्टडी, जबकि हम लोग इस बात में इंटरेस्टेड ज्यादा होंगे कि रेमडेसिविर को जब इस्तेमाल किया तो उसका मॉर्बिडिटी बेनिफिट कितना है, कितने पेशेंट में
अदरवाइज ऑक्सीजन कम लगा या कितने पेशेंट डिसैचुरेट कम हुए या कितने पेशेंट में वेंटिलेशन की जरूरत कम पड़ी, तो ये सारे जो इसकी मॉर्बिडिटी बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर में बहुत ज्यादा बातें रेमडेसिविर के सिलसिले में नहीं हो पाई। तो जो WHO के सॉलिडेरिटी ट्रायल है उसमें तो उन्होंने मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं दिया और उसकी वजह से इसको उन्होंने अपने गाइडलाइन से हटा दिया। लेकिन यह है कि जो गाइडलाइन है एम्स वाली और ICMR वाली उसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि इसका जो इंडिकेशन ये बताए गए इसी में इसको इस्तेमाल करना है। रफली इतना तो तय है कि रेमडेसिविर आप 10 डेज के या 12 डेज के बाद देने से तो कोई फायदा नहीं है। वंस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस सेट्स इन, रेमडेसिविर का कोई और इसकी इतनी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर नहीं है। तो लेट अस नॉट हाइप इट सो दैट मच, बट पीपल हु आर यूजिंग रेमडेसिविर having some benefit definitely in some morbidity benefits. There are ACT2 trial and some other trials which are also showing, वो अभी प्रोसेस में भी ये चल रहा है उसके ऊपर। तो ये कुछ बातें रेमडेसिविर के ऊपर। Then corticosteroid, basically corticosteroid, we all know these are that group of drugs which are the crux of the treatment of COVID. जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसमें इसके कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, क्या इंडिकेशन है, कितना दें, कितने दिनों के लिए दें, कैसी टैपरिंग करें, स्लो करें टैपरिंग या फास्ट टैपरिंग करें, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसका लिया गया है, तो एक्चुअली बेसिकली इनको देना तो तब है जब जल्दी से जैसे ही हाइपोक्सिया की शुरुआत होती है तो उस समय इनका इंडिकेशन बहुत क्लियर कट है कि स्टेरॉइड का इंडिकेशंस किस समय। कोई भी मॉडरेट डिजीज है जो कि बाय डेफिनेशन 94% से कम अगर सैचुरेशन है उनका, तो उसमें स्टेरॉइड का रोल क्लियर कट है। बट ट्राई टू नॉट टू गिव इट इन फर्स्ट 5 डेज, बिकॉज एट दैट टाइम अगर स्टेरॉइड दे रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं से इम्यून को सप्रेस कर रहे हैं, और इम्यून को सप्रेस कर रहे हैं तो हम कोविड के जो कोविड-19 के अपने एंटीवायरल प्रॉपर्टी जो हमारी है उसको कम कर रहे हैं। सो व्हाट ड्रग, either dexamethasone or methylprednisolone in equivalent dose to start with 0.1 to 0.2 milligram per kg IVOD into 3 to 5 days, or injection methylprednisolone 0.5 to 1 milligram per kg 40 to 60 milligram in 3 to 5 days. Okay, so no use in less than 7 days unless hypoxia. If there is hypoxia, or then you should try to taper it over 10 to 14 days. पहले हम लोग इंजेक्शन देते हैं, जरूरत पड़ती है तो बाद में हम लोग फिर उसको ओरल ले लेते हैं। So again the same case, 43-year-old, fever 7 days every 6 hours, CT severity score is 11. So it is started on Medrol 32 mg once a day with enoxaparin 40 one day. So what is this coagulopathy? Thromboinflammation. See, it is a vicious triad, you know. So there is endothelial dysfunction leading to platelet activation, and in associated vascular endothelitis that may form the thrombosis. And this is virtuous triad in COVID-19. That is the main pathogenesis of all the late complications of COVID-19. So anticoagulant therapy is also very important cornerstone of this. So indication is whenever there is clinical risk of thrombosis, or if lab markers like D-dimer is increased like that in severe cases and moderate cases as well. Then moderate severity and severe disease you have to give, you have to give prophylactic as well as therapeutic, and duration it is given 2 to 6 weeks. We usually give enoxaparin, and that is moderate severity of COVID-19. We start with prophylactic dose of LMWH. If no contraindications, enoxaparin 40 mg daily subcutaneous. Or if it is severe, then we give high dose of this LMWH or unfragmented heparin, that is enoxaparin 40 mg or 0.5 milligram per kg BD. First one, in moderate case prophylactic dose is OD, and in severe case treatment dose is
BD if not at high risk of bleeding, definitely. And once everything settles down, we can continue with that oral anticoagulants like say apixaban or rivaroxaban as required. So some controversial therapies that we already discussed. This is convalescent plasma therapy. Then tocilizumab, it does more harm than benefit. First of all, this tocilizumab, it is IL-6 inhibitor. Okay, so इंटरल्यूकिन पे ये काम कर रहा है, और इंटरल्यूकिन तो हमारे लिए बेहतर है. अगर हमने इंटरल्यूकिन रिस्पॉन्स को पूरा दबा दिया तो हो सकता है कि हम एक बार को इसके इन्फ्लेमेटरी से थोड़ा बहुत बच भी जाए, बट लॉन्ग टर्म वो फाइब्रोसिस वगैरह भी, जो कोविड का जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फिल्ट्रेशन है, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म फाइब्रोसिस ज्यादा होती है. क्योंकि IL-6 इज इनफैक्ट IL-6 जो है वो तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि ये सारी एक्टिविटी को गवर्न कर रहा है. लेकिन एक तरह से इम्यून पैरालिसिस करा देता है. देयर चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन इज आल्सो मोर. और इसके बाद अगर पेशेंट डिटेरियोरेट करता है तो आपके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं रह जाती हैं. इसलिए इसके बारे में भी, इसको भी हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए और बहुत सारे इसको रूटीन वे में तो खैर एडवाइस करने का कोई सवाल ही नहीं है. सिलेक्टेड केसेस में ही इसके ऊपर बातें होती हैं. तो स्टेरॉइड टैपरिंग किस तरह से करना है उसके ऊपर में इस तरह से है कि 77 इयर्स का था, दैट सेम केस, डायबिटीज मेलाइटस, डे 8, कफ, वीकनेस, HbA1c नॉर्मल, started on oral methylprednisolone and enoxaparin. How did he taper? Day 8 पे Midrol 24, CRP बढ़ा Day 12 पे 18 से 32 हुआ, Midrol को बढ़ा के 32 कर दिया गया, enoxaparin सेम है. Day 16 पे CRP नॉर्मल आना शुरू हो गया, Midrol की टैपरिंग शुरू हो गई, और enoxaparin पहले तो 10 days तक इंजेक्शन, then shift to oral for 4 weeks. So this is, we titrate the dose of steroid as per the condition, and once it is settled, we taper it off. Say something in fast tapering is better than slow tapering, though there is dispute and it's individual choice basically. So CDC is discontinuation of transmission based precaution for patients with confirmed SARS-CoV-2. Now, this is the same thing, that symptom-based strategy, more than 24 hours since resolution of fever or last antipyretics. ये कब आपको डिसकंटिन्यू करना शुरू करना है उसके ऊपर में ये है. So this is all classification. ये इसके बारे में कल लेक्चर होगा, ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रेन, उसके बारे में कल ये टॉपिक रखा गया है. सो फाइनली कंक्लूजन, तो हमारे इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कौन से पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, होम ट्रीटमेंट, इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट, किसके लिए कैसा करना है. बिकॉज 85% पेशेंट डू नॉट एनी ट्रीटमेंट. सो दिस कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग इज द की टू सक्सेस. लैब एंड रेडियोलॉजी टू बी यूज्ड judiciously, and tests should be interpreted in clinical context. Recognition of early pulmonary stage is key to success, and remdesivir recipients should be watched for pneumonia and development of hypoxemia. Thank you very much for giving me this opportunity to interact with you. Thank you. Thank you, Dr. Ajay, for Thank you, Ajay sir, for a nice and very informative, deep insight on the COVID-19 in adults with clear vision regarding symptomatology, diagnostic tools, and treatment portion with latest medicines and things. Now I hand over to Dr. Sanjeev Agarwal for further question answer session. Thank you, sir. Thank you again, sir. Thank you, Arun Sharma sir. Thank you very much. And thanks a lot, Dr. Ajay, for a nice and lucid presentation. And it gives us thorough insight about the COVID vaccine, the COVID symptomatology,
symptomatic treatment and definitive treatment about the COVID. And now I would like to invite Dr. Arvind to invite questions from the house, because now the house is open to question answer. Let us see. Then we have question answer session late together because we are already learning very late. Yeah, It is bad. Dr. Arvind is not there, and we can have this in the last of both the sessions. Yes, please carry on, Dr. Arana. Okay. Yes, sir. So, So thank you, sir. no question is there in the chat box also. So we can ask question later on at the end of the session. Okay. Thank you, sir. Let me welcome Dr. Ajay Gupta, sir. He is here. So thank you, sir, for joining us. With your permission, I will proceed towards our next session. That is by Dr. Sanjay Niranjan, sir. And he will speak on very important topic, that is psychosocial issues arising out of this COVID pandemic. And for that, our eminent chairperson are respected Dr. Salabh Kumar, sir, and Dr. Ajay Srivastava, sir. So I hand over to Dr. Salabh Kumar, sir, and Dr. Ajay Srivastava, sir, and I request them to please introduce our speaker.